کہ پنجاب حکومت نے 43 شرائط کے ساتھ پی ٹی آئی کو لاہور میں جلسہ اجازت دے دی ہے۔ لاہور کی ضلع انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کو کاہنہ میں رنگ روڈ پر جلسے کا NOC جاری کر دیا۔ جلسہ آج دوپہر 3 بجے سے شام 6 بجے تک ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو 8 ستمبر کے جلسے میں سخت زبان پر معافی مانگنا ہوگی۔ جلسے کی سیکیورٹی آرگنائزر کے ذمہ دار ہوگی۔ پنجاب حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو SOPs کے ساتھ جلسے کی اجازت دے دی۔ مینار پاکستان کے بجائے جلسہ کاہنہ میں رنگ روڈ پر ہوگا۔ ضلع انتظامیہ نے 43 شرائط و ضوابط کے ساتھ PTI کو جلسے کی اجازت دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے جلسے کی اجازت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق PTI کا جلسہ آج دوپہر 3 بجے سے شام 6 بجے تک ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو 8 ستمبر کے جلسے میں سخت زبان پر معافی مانگنا ہوگی۔ معافی نہ مانگنے کی صورت میں NOC منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ جلسے کی سیکیورٹی آرگنائزر کے ذمے ہوگی۔ جلسے میں کسی ادارے اعلی شخصیات کے خلاف بیان بازی کی اجازت نہ ہوگی۔ اسٹیج کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے منتظمین ذمہ دار ہوں گے۔ کوئی اشتہاری مجرم جلسہ میں شرکت نہیں کرے گا۔ کسی کو بھی ڈنڈوں کے ساتھ پنڈال میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شہر سے باہر کے جتھے لاہور میں آ کر روزمرہ کی زندگی میں خلل نہیں ڈالیں گے۔ جلسہ کے دوران ریاست مخالف نعرے اور بیان بازی کا استعمال نہیں ہوگا۔ اسلام آباد جلسہ میں نفرت انگیز تقاریر کے لیے زیر سماعت افراد کو شرکت کی اجازت نہ ہوگی۔ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر نے میڈیا گفتگو میں کہا کہ یہ ہماری لیگل ونگ کی کاوش ہے۔ مینار پاکستان پر جلسے کی ہر جماعت کو اجازت ہے سوائے ہمارے۔ مینار پاکستان میں پچھلے دنوں جمعیت علماء اسلام نے جلسہ کیا، منہاج القرآن نے اپنا جلسہ کیا وہاں پہ، تو وائی ناٹ پاکستان تحریک انصاف۔ PTI لیگل ٹیم کا کہنا ہے کہ لاہور میں پرامن جلسہ ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ اور اپنے لیڈرز کے شکر گزار ہیں۔ ہمیں NOC مل گیا اور کاہنہ میں کل ہم انشاءاللہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ ٹائمنگ کا تھا، ہمیں انہوں نے ٹائم دیا تھا 2 سے 5 پہلے، ہماری ریکوائرمنٹ تھی 5 سے 10، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے 2 سے 5:30 تک صرف جو ہے وہ ٹائم دیا ہے، جو کہ ایک تھوڑی سی میں کہوں گا کہ زیادتی ہے، لیکن باہر جو بھی شرائط انہوں نے دیا ہمیں اس کو کمپلائی کرنا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو PTI کی لاہور میں جلسے کی اجازت کے لیے دائر درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ کاہنہ کے علاوہ جلو پارک میں جلسے کی اجازت کی خبریں بھی سامنے آئی تھیں۔ کیمرامین ذیشان کے ساتھ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ انتظامیہ سے اجازت ملنے کے باوجود PTI کاہنہ میں جلسے سے متعلق تاحال کوئی انتظامات نہ کر سکی۔ رات کو جلسہ گاہ میں پہنچنے والے PTI کے کارکن گرمی بڑھتے ہی غائب ہو گئے۔ پارٹی کی مرکزی اور مقامی قیادت بھی جلسہ گاہ نہ پہنچ سکی۔ قائدین کے لیے سٹیج اور ورکرز کے لیے دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت نے 43 شرائط کے ساتھ PTI کو لاہور میں جلسے کی اجازت دے دی ہے۔ لاہور کی ضلع انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کو کاہنہ میں رنگ روڈ پر جلسے کا NOC جاری کر دیا ہے۔ جلسہ آج دوپہر 3 بجے سے شام 6 بجے ہوگا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بانی PTI کی توشہ خانہ کیس میں نااہلی کا یہ معاملہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بانی PTI کی نااہلی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی۔ عدالت نے بانی PTI کے وکیل کو دلائل جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ بانی PTI کی توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت۔ جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے بانی PTI کی درخواست پر سماعت کی۔ لارجر بینچ میں جسٹس شاہد کریم، جسٹس شہرام سرور چودھری، جسٹس جواد حسن اور جسٹس رسال حسن شامل ہیں۔ بانی PTI کے وکیل نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کے پاس بانی PTI کے خلاف 120 دن کے اندر ایکشن لینے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ وکیل نے بتایا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ بانی PTI کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کر دیں۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے مطابق اگر عدالت نے حکم دیا کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے تو آپ نااہل ہو سکتے ہیں، مگر بانی PTI کے کیس میں کسی عدالت کا کوئی فیصلہ نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن کو الیکشن ایکٹ میں اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی رہنما کو نااہل قرار دے۔ بانی PTI کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ ان کے موکل کی نااہلی کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت نے وکیل کو دلائل جاری رکھنے کی ہدایت کی اور کیس کی سماعت غیر معینہ ملتوی کر دی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ PTI رہنما اور رکن آزاد کشمیر اسمبلی غلام محی الدین دیوان کی نظر بندی کے خلاف درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے PTI رہنما کی نظر بندی کالعدم قرار دے کر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اسجد جاوید گھرال نے غلام محی الدین کی اہلیہ صبا دیوان کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے بیرسٹر میاں علی اشفاق اور رانا معروف ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ غلام محی الدین دیوان کو قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر بند کیا گیا۔ رولز کو مد نظر
नजर नहीं रखा गया। गुलाम मोहिउद्दीन दीवान के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है न वो मतलूब हैं, लिहाजा अदालत नजरबंदी का फैसला कलअदम करार। दौरान समाअत पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि हमने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को पीर के लिए फिक्स किया हुआ है। अदालत ने करार दिया कि आपके पास नजरबंदी के जवाब के तौर पर क्या मटीरियल है। पंजाब हुकूमत के वकील अदालत को अपने दलाइल से मुतमईन न कर सके। लाहौर हाई कोर्ट ने गुलाम मोहिउद्दीन दीवान की नजरबंदी कलअदम करार देकर रिहाई का हुक्म दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। इंतजामिया से इजाज़त मिलने के बावजूद पीटीआई कान्हा में जलसे से मुतल्लिक ताहाल कोई इंतजामात नहीं कर सकी। रात को जलसागाह में पहुंचने वाले पीटीआई के कारकुन गर्मी बढ़ते ही गायब हो गए। पार्टी की मरकजी और मकामी क़यादत भी जलसागाह ना पहुंच सकी। कायदीन के लिए स्टेज और वर्कर्स के लिए धूप से बचने के लिए किसी किस्म के कोई इंतजामात भी नहीं किए गए हैं। आपको बताया जा रहा है कि इंतजामिया से इजाज़त मिलने के बावजूद पीटीआई कान्हा में जलसे से मुतल्लिक ताहाल किसी भी किस्म के कोई इंतजामात नहीं कर सकी है। रात को जलसागाह में पहुंचने वाले पीटीआई के कारकुन गर्मी बढ़ते ही गायब हो गए। पार्टी की मरकजी और मकामी क़यादत भी जलसागाह नहीं पहुंच सकी है। कायदीन के लिए स्टेज और वर्कर्स के लिए धूप से बचने के लिए किसी किस्म के कोई इंतजामात नहीं किए गए। आपको बताया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत ने 43 शराइत के साथ आज पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाज़त दी है। लाहौर की ज़िला इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कान्हा में रिंग रोड पर जलसे का NOC जारी किया है। जलसा आज दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। और इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप जलसागाह पर इस वक्त? की जो सूरत हाल है वो इसी तरह से है कि सुबह के औकात में हमने देखा था कि कारकुनान की कुछ तादाद यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन जैसे ही सूरज अपने जो है वो जुबन पर चमकना शुरू हुआ है, कारकुनान जो है यहाँ से जो है वो रफू चक्कर हो चुके हैं। मैदान जो जलसे की मैदान गाह है, जो जलसा गाह है, बिल्कुल खाली हो चुकी है। अगर मेरा कैमरामैन शबाज खान आपको मैं रकम में दिखाए तो आप देख सकते हैं कि अभी तक यहाँ पर किसी किस्म के कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। हम आपको कैमरा पैन करवा के दिखा सकते हैं, बिल्कुल चटियल मैदान का मंजर जो है वो इस टाइम जलसा गाह पेश कर रही है। अभी तक ना स्टेज लगाया गया है, ना कुर्सियां लगाने का अमल शुरू किया गया है। बहुत ही स्लो प्रोसेस जारी है अभी तक, और इंतज़ामिया भी हमें अभी तक यहाँ पर गायब नज़र आती है। इसके साथ साथ अगर बताता चलूँ तो हमें यहाँ पर कोई पीटीआई के कारकुनान के साथ साथ पीटीआई का जो रहनुमा है, जो लीडरशिप है, वो भी यहाँ पर नज़र नहीं आती। जो पीटीआई लीडरशिप वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया था कि रात को जो है शेख वकास अकरम ने यहाँ पर चक्कर लगाया था और शेख इम्तियाज़ सारी रात यहाँ पर मौजूद रहे। तो उसके अलावा जो पीटीआई की रहनुमा है, जो पीटीआई जितनी भी ऊपर लीडरशिप है, उनमें से कोई भी यहाँ पर हमें नज़र नहीं आया जो कि कारकुनान का यहाँ पर जोश गरमा सके, जो यहाँ कारकुनान को यहाँ पर खींच सके। और कारकुनान का भी ये सूरत हाल है कि रात के कुछ औकात में हमने देखा था कि तकरीबन 12 बजे के करीब जो है कारकुनान की तादाद यहाँ पर ज़रूर मौजूद थी। उसके बाद जो है कारकुनान चले गए, फिर उसके बाद सुबह के औकात में कारकुनान की कुछ हल्की तादाद यहाँ पर है। उसके बाद जैसे ही सूरज अपने आबोताब पर चमकना शुरू हुआ, दोबारा से जो मैदान जो है जलसागाह का मैदान है दोबारा से खाली हो चुका है। जलसागाह बिल्कुल खाली हो चुकी है। बहुत ही कम तादाद में जो है वो कारकुनान यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर कोई इंतजामात मौजूद नहीं है। यहाँ पर किसी किस्म का धूप से बचने के लिए इंतजाम मौजूद नहीं, यहाँ पर पानी के इंतजाम मौजूद नहीं है, और बाकी पर जितनी सहूलियात होनी चाहिए अभी तक किसी किस्म की कोई सहूलत यहाँ पर मौजूद नहीं है। बिल्कुल चटिल मैदान की सूरत इस टाइम जो है वो जलसागाह बयान कर रही है। ना इस टाइम स्टेज लगाने का अमल जारी किया गया है, ना स्टेज लगाना शुरू किया है, ना कुर्सियाँ बिछाई गई हैं, ना कारपेट बिछाया गया है। बिल्कुल ही अभी तक जो इंतजाम जीरो के लेवल पर हैं। और जलसे का टाइम जो है दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक कर दिया गया है, जबकि 3 घंटे काफ़ी कलील मुद्दत बयान की गई है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि लीडरशिप का आना जलसा स्टार्ट हुआ और ये भी जो है किसी किस्म के कोई इंतजामात नहीं किए गए। जलसा जैसा कि 3 बजे शुरू होने वाला है, वक्त मुकर्रर कर दिया गया है, तो क्या समझते हैं 3 बजे तक इंतजामिया इंतजामात कर पाएगी? और अगर अभी तक इंतजामात नहीं हुए तो क्या कोई रुकावट का सामना है ज़िले हुकूमत की जानिब से? हुकूमत का बयानिया तो ये है कि रुकावट का कोई सामना नहीं है। जबकि अगर हम बात करें पीटीआई कारकुनान की तो वो ये बात का गिला करते ज़रूर नज़र आते हैं कि जब स्टेज का इक्विपमेंट या जो बाकी साजो सामान था वो यहाँ पर आ रहा तो पुलिस ने जो है रास्ते में ज़रूर वो सामान रोक के रखा है। तो उसके बाद सुबह के बाद जो है वो सामान दोबारा से रिलीज़ किया गया, तो जलसा गाह की तरफ वो सामान थोड़ा थोड़ा करके पहुँचना शुरू हुआ है। और अगर हम बात कर चले इंतजामिया तो इंतजामिया तो यही कहती है कि हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। और बताता चलूँ कि अगर 3 बजे तक जलसे का टाइम स्टार्ट होना है तो बिल्कुल मुमकिन है, अगर
ठीक वक्त पर अभी भी इंतजामात शुरू कर दिए जाएँ तो 3 वक्त तक बिल्कुल एक बहुत एम्पल टाइम मौजूद होगा जिसके अंदर जो है प्रॉपर अरेंजमेंट्स की जा सकेंगी और जितनी भी तैयारियाँ हैं उनको पूरा किया जा सकेगा, क्योंकि एक बहुत एक ज़्यादा स्किल्ड वर्कर पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो यानी कि वो मुश्किल नहीं है कि जलसा गाह को जो है वो रेडी किया जा सके। बात ये है कि कितना टाइम लेते हैं और कब स्टार्ट करते हैं और कारकुनान की क्या सूरत हाल बनती है, कारकुनान कब यहाँ पर पहुँचते हैं, वो अच्छा असल PTI के लिए मसला रहेगा। क्योंकि आप तो जानते हैं कि रास्ते के अंदर भी जो है अच्छे खासे कंटेनर्स लगे हुए हैं। कारकुनान के भी अजम्पशंस ये हैं कि रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, रास्ते बंद कर दिए। इस्लामाबाद के अंदर हमने देखा कि कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद कर दिए, कारकुनान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे सूरत हाल से। ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल का ये मामला है। गिरफ्तार शूटर अजहर और इलियास के अहम इंकशाफात सामने आए हैं। जावेद भट्ट को शूटर्स ने शाह आलम चौक में टारगेट करने का प्लान बनाया और रैकी करने वाले मुलजिम अफजल को 3 मरला का घर दिलाने का लालच भी दिया गया। मज़ीद तफसीलात मुदस्सिर हुसैन की इस रिपोर्ट में देखिए। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल के मामले में अहम पेशरफ, गिरफ्तार शूटर अजहर और इलियास के सनसनीखेज इंकशाफात। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के मुताबिक गिरफ्तार शूटर्स ने 4 मरतबा जावेद भट्ट की ब्रांडस रोड पर भी रैकी की। दौरान रैकी शूटर्स असलहा साथ नहीं रखते थे। जावेद भट्ट को शूटर्स ने शाह आलम चौक में टारगेट करने का प्लान बनाया। शूटर्स असलहा लेकर 2 घंटे तक जावेद भट्ट की ताक में बैठे रहे। जावेद भट्ट उस दिन किसी वजह से मामूल से पहले वहाँ से निकल गया। रैकी करने वाले मुलजिम अफजल को 3 मरले का घर दिलाने का लालच आरिफ ने दिया। रैकी करने वाला मुलजिम अफजल मफरूर मुलजिम आरिफ का करीबी अजीज है। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने बताया कि मफरूर मुलजिम आरिफ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के मुख्तलिफ मकामात पर छापे जारी हैं। मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। गुजरावाला में फैक्ट्री वर्कर का बेदर्दी से कत्ल, मकतूल नौजवान अकरम के लवाहिकीन का लाहौर में क्लब चौक मारोड पर मुजाहरा किया गया है और मुजाहिरीन ने चौक को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। पुलिस ने मुजाहिरीन को साइड पर कर दिया। गुजरावाला से आए अफराद का नौजवान अकरम के कत्ल के खिलाफ क्लब चौक माल रोड पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने क्लब चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को साइड पर किया। मकतूल अकरम के भाई असलम ने बताया कि अकरम को फैक्ट्री में काम के दौरान तशद्दुद करके कत्ल किया गया। पुलिस ने अभी तक मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया। मारा गया 4-5 आदमी ने, ये थोड़ा लगा। 1 घंटा 20 मेडिकल रिपोर्ट कह रही है, 1 घंटा 20 मिनट उसको मारा गया। ऊपर छत पे डेड बॉडी गिर दिया कि जी ऊपर से गिर के मर गया। 300 तो है यार, हमारा मर्डर हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। SP सिविल लाइंस अब्दुल हनान ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन जुहेब के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। PIA की लाहौर से रियाज जाने वाली परवाज 725 7 घंटे बाद भी रवाना नहीं हो सकी। लाहौर से रियाज जाने वाली PIA की परवाज के मुसाफिर रात से एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। एयरलाइन हुकाम तैयारे की रवानगी से मुतल्लिक रात से मुतअद्दिद बार वक्त तब्दील कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक ताख़ीर का शिकार परवाज के मुसाफिरों की बोर्डिंग हुई और ना ही उनको होटल फराहम किया गया है। और इसी पर तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली से। अली, बताइए किस वजह से परवाज ताख़ीर का शिकार है? अली से राबता बहाल करेंगे। आपको बताया जा रहा है कि PIA की लाहौर से रियाज जाने वाली परवाज 725 7 घंटे बाद भी रवाना नहीं हो सकी है और लाहौर से रियाज जाने वाली PIA की परवाज के मुसाफिर रात से एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। एयरलाइन हुकाम तैयारे की रवानगी से मुतल्लिक रात से मुतअद्दिद बार वक्त भी तब्दील कर चुके हैं और ज़राए का इस हवाले से कहना है कि ताख़ीर का शिकार परवाज के मुसाफिरों की ना तो बोर्डिंग हुई है और ना ही उनको होटल फराहम किया गया है। आपको इस वक्त बताया जा रहा है कि PIA की लाहौर से रियाज जाने वाली परवाज 725 7 घंटे बाद भी रवाना नहीं हो सकी है। लाहौर से रियाज जाने वाली PIA की परवाज के मुसाफिर रात से एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और ज़राए के मुताबिक ताख़ीर का शिकार परवाज के मुसाफिरों की बोर्डिंग हुई है और ना ही उनको कोई भी होटल फराहम किया गया है। एयरलाइन हुकाम तैयारे की रवानगी से मुतल्लिक रात से मुतअद्दिद बार वक्त भी तब्दील कर चुके हैं और आपको बताते चलें कि PIA की लाहौर से रियाज जाने वाली परवाज 725 7 घंटे बाद भी रवाना नहीं हो सकी है। लाहौर से रियाज जाने वाली PIA की परवाज के मुसाफिर रात से एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और एयरलाइन हुकाम तैयारे की रवानगी से मुतल्लिक रात से मुतअद्दिद बार वक्त भी तब्दील किया जा चुका है। ज़राए का ये कहना है कि ताख़ीर का शिकार परवाज के मुसाफिरों की ना तो बोर्डिंग की गई है और ना ही उनको कोई भी होटल फराहम किया गया है। आपको अपडेट किया जा रहा है कि PIA की लाहौर से रियाज जाने वाली परवाज 725 7 घंटे बाद भी रवाना नहीं हो सकी है।
डेंगू के वार बरकरार हैं। 24 घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के मजीद 45 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर से डेंगू बुखार के मजीद 3 मरीज सामने आ गए। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा जारी। 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर डेंगू के 45 नए केसेस सामने आए। रावलपिंडी में मजीद 39 मरीजों में डेंगू बुखार की तस्दीक। लाहौर से डेंगू के मजीद 3 मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के आदादोशुमार के मुताबिक ओकाड़ा, मंडी बहाउद्दीन और मियांवाली से डेंगू का मजीद एक केस रिपोर्ट हुआ है। एक हफ्ते में डेंगू के 296 केसेस सामने आ चुके। रवां साल अब तक डेंगू के 888 मुसद्दका मरीज रिपोर्ट हुए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में डेंगू समेत दीगर अद्वियात का स्टॉक मौजूद है। लाहौर में डेंगू हॉटस्पॉट्स को खुसूसी तौर पर फोकस किया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। लाहौर को खूबसूरत बनाने की मुहिम पीएचए की जानिब से ग्रीन बेल्ट्स और बागात की ताज़ीन और आराइश जारी है। ग्रीन बेल्ट्स पर फूलों, घास और दरख्तों की निगहदाश्त भी की जा रही है। ग्रीन बेल्ट्स पर मौसमी फूलों की मदद से दीदा ज़ेब डिज़ाइंस बनाए जा रहे हैं। पीएचए अमला बेहंगम घास की कटाई और दरख्तों की कान चांट कर रहा है। अड्डा प्लाट, जाती उमरा, ख़ियाबान अमीन, शानू बाबा गोल चक्कर, छतरी चौक और शौकत खानम फ्लाईओवर पर काम मुकम्मल कर लिया गया, जबकि ठोकर न्याज बेग, शाहजरा, बाबू साबू और गजुमता समेत दीगर मकामात पर हॉर्टिकल्चर का काम हो रहा है। पीएचए का अमला रात गए तक फील्ड में मौजूद रहा।